Hello, students of class 8, and welcome back. Students, in the previous class, we have covered half of the chapter, that is, the night the bed fell and its difficult word meanings. We have also talked about the author James Thurber. In today's class, we are going to discuss the remaining part of the chapter and its difficult word meanings. So, at first, let's learn the difficult word meanings of the chapter. The first one is bundled up, means wrapped up, something which is covered. Canopy means a cover fixed over a seat or bed, etc., for shelter or decoration. Racket means commotion, loud noise. Dread means fear, panic. For no apparent reason means without an obvious reason or cause. Hysterical means uncontrollably emotional because of fear or worry. Vague, something which is not clear. Apprehension means a fear or doubt that something unpleasant is going to happen. Grasp means to seize and hold firmly. Reeked means had a strong unpleasant smell. Deluge means flood. Pungent means something with a strong smell or taste. Leap out means jumped out suddenly, came out. Groped means searched blindly. Alleyway means street. Juncture means a particular point of time or stage. Uncanny means strange or mysterious. Foggy means unable to think clearly. Frantic means extremely worried or upset. Endeavor means an effort or an attempt. Extricate means to free from difficulty. Bawl means shouted in a very loud voice. Nightmarish means extremely frightening and unpleasant. Entombed means buried. Gasped means panted. Floundering means struggling or moving clumsily. Pursued means followed. Wreckage means remains of something that has been badly damaged. Yield means open. Battering means beating or hitting. Detect means discovered or noticed. Yell means to shout. Culprit means a guilty person. Crawling means moving slowly. Howl means bark loudly. Gigantic means huge and enormous. Prowling means walking about. Now turn to page number 3, para third. Always a deep sleeper, slow to arouse. I had lied to Briggs. I was at first unconscious of what had happened when the iron cord rolled me onto the floor and toppled over me. It left me still warmly bundled up and unhurt, for the bed rested above me like a canopy. Hence, I did not wake up, only reached the edge of consciousness and went back. ऑलवेज अ डीप स्लीपर स्लो टू राउस, यानी जिनकी नींद गहरी होती है वो जल्दी नहीं उठते, यानी वो देर से उठते हैं.
मैंने आई हैड लाइड टू ब्रिक्स, जिस तरीके से मैंने इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी राइटर ने झूठ बोला था कि मैं एक लाइट स्लीपर हूँ, अगर किसी की सांस रुक जाए तो मैं उस पता चल जाता है, तो भी मुझे पता चल जाता है और मैं उठ जाता हूँ। आई वॉज एट फर्स्ट अनकॉन्शियस ऑफ वॉट हैड हैपेंड। एट फर्स्ट आई, राइटर कह रहे हैं, एट फर्स्ट आई वॉज अनअवेयर कि असल में हुआ क्या है, कि जब वो जो आयरन बेड था वो गिर गया है, फ्लोर पे लुढ़क गया है, एंड टॉपल्ड ओवर ऑन मी, और मैं उसके नीचे हूँ और बेड ऊपर से मुझ पे पलट गया है। इट लेफ्ट मी स्टिल वार्मली बंडल्ड अप एंड अनहर्ट। मैं उसमें पूरी तरीके से कवर्ड था, ढका हुआ था, उसमें लिपटा हुआ था बेड में, इसलिए मुझे कहीं से चोट नहीं आई। फॉर द बेड रेस्टेड अबव मी लाइक अ कैनोपी, और बेड मुझ पे ऐसा रेस्ट कर रहा था, ऐसा पड़ा हुआ था जैसे मैं बेड मेरे ऊपर पूरे कवर की तरह से ढका हुआ था। हैंस आई डिड नॉट वेक अप, इसलिए मैं उठा नहीं और मुझे पता भी नहीं चला। ओनली रीच द एज, एज बोलते हैं किसी चीज़ का किनारा, एंड ऑफ समथिंग, तो मैं इसलिए मैं उठा भी नहीं, तो बस थोड़ा सा मुझे हल्का सा पता चला, फिर वापस मैं सो गया। एंड वेंट बैक मीन्स वापस फिर मैं सो गया। The racket, however, instantly awakened my mother in the next room, who came to the immediate conclusion that her worst dread was realized. The big wooden bed upstairs had fallen on father. She therefore screamed, "Let's go to your poor father." तो उसके बाद रैकेट मीन्स अप्रोर, लाउड नॉइस, तो वो जो शोर गुल की आवाज़ थी, शोर की जो था वहाँ पे, उसकी वजह से जो मम्मी दूसरे रूम में सो रही थी वो फ़ौरन उठ गई, और वो यही समझी कि ऊपर जो फादर एटिक में सो रहे हैं वो वुडन बेड, लकड़ी का बेड उनके ऊपर गिर गया है। अब वो कह रहा है लेट्स गो टू योर पुअर फादर, अरे चलो तुम्हारे बेचारे फादर के ऊपर बेड गिर गया है, चलो उनको देखते हैं। इट वॉज this it was this a shout rather than the noise of my cot falling that awakened Herman in the same room with her. He thought that mother had become, for no apparent reason, hysterical. जो हरमन है वो भी उसी रूम में सो रहा था जिस रूम में मदर सो रही थी, मदर सो रही थी। वो कह रहे हैं कि ये जो आवाज़ थी गिरने की, ये मेरे बेड के गिरने की आवाज़ थी, और मम्मी जो है बिना किसी रीज़न के, फॉर नो अपेरेंट रीज़न मीन्स विदाउट एनी अथॉन्टिक रीज़न, कि क्या है वो बहुत ज़्यादा वरिड हो जा रही, हिस्टेरिकल मीन्स बहुत ज़्यादा घबरा जाना, बहुत ज़्यादा वरिड हो जाना, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाना, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जा रही बिना किसी रीज़न के। यू आर ऑल राइट मम्मा, ही शाउटेड ट्राइंग टू काम हर। They exchange shout for perhaps 10 seconds. Let's go to your poor father, and you are all right. That woke up Briggs. By this time, I was conscious of what was going on in a vague way, but did not yet realize that I was under my bed instead of on it. Briggs, awakening in the midst of loud shout of fear, and you are right. ये जो है हरमैन कह रहे हैं कि आप सही कह रही हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं मम्मा। ही शाउटेड ट्राइंग टू काम हर, वो उनकी बात मानकर वो उन्हें खामोश करने की, उन्हें चुप करने की कोशिश कर रहा है हरमैन। दे एक्सचेंज शाउट फॉर परहैप्स 10 सेकेंड्स, यानी वो 10 सेकेंड तक चिल्लाते रहे कि बेड ऊपर गिर गया। लेट्स गो टू योर पुअर फादर, फिर वही इसी बात को 10 सेकेंड तक रिपीट कर रहा है, अरे चलो तुम्हारे फादर के पास चलो। यू आर ऑल राइट। दैट वो का ब्रिक्स, जो ब्रिक्स था, ब्रिक्स बील था जो दूसरे रूम में सो रहा था, इस आवाज़ की वजह से वो भी उठ जाता है इस टाइम। आई वॉज कॉन्शियस ऑफ वॉट वॉज गोइंग ऑन, राइटर कहना है कि मुझे पता था, अब मुझे पता चल गया थोड़ा थोड़ा कि क्या हो रहा था। इन अ वेग समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर, मुझे थोड़ा ही पता था क्योंकि मैं अभी भी पूरी तरीके से नींद से बेदार नहीं हुआ था। बट डिड नॉट रियलाइज दैट आई वॉज अंडर माई बेड इंस्टेड ऑफ ऑन इट, मैं जग तो गया था लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मैं बेड के ऊपर होने के बजाय मैं बेड के नीचे था। अवेकनिंग इन द मिड्स ऑफ लाउड शाउट ऑफ फियर, कि मैं थोड़ा सा डरा भी था
कि चारों तरफ शोरगुल थी, लोग बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे। एंड and apprehension came to the quick conclusion that he was suffocating, and we were all trying to bring him out. वो जो ब्रिक्स बील है और उनको ऐसा लगा, क्या उनको शक तक, एप्रीहेंशन मीन्स डाउट और फियर, ये डर था क्या वो उनका दम घुट रहा है और वो मर जाएंगे। जो ब्रिक्स बील है उनका ये मानना रहता कि अगर हर घंटे में रात को अगर वो नहीं उठेगा तो उसकी दम घुट जाएगी और वो मर जाएगा। दैट वी वर ऑल ट्राइंग टू ब्रिंग हिम आउट, तो हम क्या कर रहे थे, उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। विद अ लो मोन he grasped the glass of camphor at the head of his bed and instead of sniffing it poured it over himself. The room reeked of camphor. तो वो घबरा कर नींद से उठता है और कैम्फर जो कपूर का गिलास रहता है उसको सूंघने के बजाय वो इसको क्या करता है, जल्दी से अपने ऊपर उंडेल लेता है। पोर मीन्स उंडेलना। और पूरे रूम में कैम्फर यानी कपूर की बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट स्मेल सा हो जाता है और सभी लोग परेशान हो जाते हैं। ओह, choked bricks like a drowning man, for he had almost succeeded in stopping his breathing under the deluge of pungent spirits. He leaped out of bed and groped toward the open window, but he came up against the one that was closed with his hand. He beat out the glass, and I could hear it crash and tinkle on the alleyway below. तो अब ये क्या कह रहे हैं, क्या वो नींद से जैसे ही घबरा कर उठता है और ऐसा लगता है लाइक अ ड्रॉनिंग मैन कि वो डूब रहा है। फोर ही हैड ऑलमोस्ट सक्सीडेड इन स्टॉपिंग हिज ब्रीदिंग अंडर द डेल्यूज ऑफ, कि जब इतनी पूरे रूम में उसकी कैम्फर की स्मेल सा हो गया है और वो परेशान हो गया है उसकी वजह से। ही लीप्ड आउट ऑफ द बेड, वो क्या होता है, बेड से जंप होता है। लीप्ड आउट मीन्स जंप्ड आउट, वो बेड से सडनली बाहर निकलता है। एंड ग्रॉब मीन्स होता है किसी चीज़ को टटोलना, और वो इन विंडो को टटोलता है और वो विंडो को टटोलता है ताकि उसकी तरफ वो जाए और वहाँ से या तो बाहर आ जाएंगे या फिर सांस लेंगे। बट ही केम अप अगेंस्ट दैट वॉज क्लोज, लेकिन वो ऐसी खिड़की की तरफ आता है जो खिड़की क्या थी, बंद थी। विद हिज हैंड ही बीट आउट द ग्लास एंड आई कुड हियर इट क्रैश एंड टिंकल ऑन द एलिवे बिलो। तो वो अपने हाथ से वो क्या करता है, खिड़की को हिट करता है, विंडो को हिट करता है, और मुझे इसकी आवाज़ यानी क्रैश यानी टूटने की और विंडो में जो गिलास थे उसके गिरने की आवाज़ मुझे कहाँ पे सुनाई दी, जहाँ पे मैं एली में खड़ा था, यानी जो गली थी वहाँ पे मैं खड़ा था, तो मुझे वहाँ पे खिड़की के टूटने की आवाज़ सुनाई दी। It was at this juncture that I, in trying to get up, had the uncanny sensation of feeling my bed above me. Foggy with sleep, I now suspected in my turn that the whole uproar was being made in a frantic endeavor to extricate me from what must be an unheard of and perilous situation. Get me out of this! I bawled, get me out. I think I had the nightmarish belief that mm, I was entombed in a mine. इट वॉज एट दिस जंक्चर मीन्स मैं ऐसे टाइम पे था, ऐसे एट दिस जंक्चर मीन्स एट द पॉइंट ऑफ समथिंग और एट द स्टेज, राइट। मैं ऐसे मोड़ पे था, ऐसे टाइम पे था। ट्राइंग टू गेट अप, मैं पूरी तरीके से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे अजीब सी अनकैनी मीन्स स्ट्रेंज, मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही थी। माई बेड अबव मी, जो कि मेरा बिस्तर, ऐसा क्यों लग रहा था, क्योंकि मेरा जो बेड था वो मेरे ऊपर था। फोगी विथ स्लीप,
फॉगी मीन्स अनेबल टू थिंक, बिल्कुल मैं क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा नींद में भी था और मैं सोच नहीं पा रहा था कि व्हाट शुड आई डू फर्दर, कि मुझे आगे क्या करना है। आई नाउ सस्पेक्टेड इन माई टर्न दैट द होल अप्रूव वॉज बींग मेड इन अ फ्रेंटिक एंडीवर, कि ये जो शोर शराबा है ये मुझे बाहर निकालने के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। Extricate means free from difficulty and from what must be of an unheard and perilous situation. Perilous means extremely dangerous, कि मुझे extremely dangerous situation से सभी लोग बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। गेट मी आउट ऑफ दिस, कि मुझे इस यहाँ से बाहर निकालो। आई होल्ड shouted very loudly. Hold means बहुत ज़ोर से चिल्लाना। Get me out. I think I had the nightmarish belief that I was entombed a mine. Entombed means होता है बरी, दफनाना। a mine, मुझे ऐसा डर लग रहा है कि किसी ने मुझे खदान में दफना दिया है। ओह गैस ब्रिक्स फ्लंडरिंग इन हिज कैम्फर, जो ब्रिक्स है वो इधर उधर वॉक कर रहा है, इधर उधर बेढंगे तरीके से चल रहा है और वो सांस ले। गैस मीन्स पेंट, मीन्स सांस लेना, लंबी लंबी सांसें लेना। बाय दिस टाइम माई मदर स्टिल शाउटिंग pursued by Herman, still shouting, was trying to open the door to the attic in order to go up and get my father's body out of the wreckage. The door was stuck, however, and wouldn't yield. Her frantic pulse on it only added to the general banging and confusion. Roy and the dog were now up, the one shouting questions, the other barking. ये कह रहे हैं कि इस टाइम पे क्या है, मदर चिल्लाते हुए और उसके पीछे हरमन है स्टिल शाउटिंग, वो दोनों चिल्ला रहे हैं। वो ट्राइंग टू ओपन द डोर, वो एटिक का डोर यानी जो बिल्डिंग है उसके ऊपर जो छोटा सा कमरा बना हुआ है, रूम बना हुआ है, वो दरवाज़ा, उस दरवाजे को, एटिक के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं दोनों लोग। इन ऑर्डर टू, क्यों, इन ऑर्डर टू गेट अप एंड गेट माई फादर्स बॉडी आउट ऑफ द रेकेज। रेकेज मीन्स होता है मलबा, किसी चीज़ का टूटा, ये चाहे वो फर्नीचर हो या फिर बिल्डिंग हो, उसके मलबे को क्या बोलते हैं, रेकेज बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उस मलबे से मेरे फादर की बॉडी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो दोनों, और वो डोर ओपन नहीं हो रहा एटिक का। द डोर वॉज स्टक, द डोर वॉज स्टक हाउएवर एंड वोंट यील्ड। अब ये कह रहे हैं डोर कहीं पे फंस गया था और वो मूव भी नहीं, ओपन भी नहीं हो पा रहा था। यील्ड मीन्स ओपन। हर फ्रैंटिक पुल्स ऑन इट ओनली एडेड टू द जनरल बैंगिंग एंड कन्फ्यूजन, और वो जो डर के बहुत ज़्यादा पैनिक होके, फ्रैंटिक पुल्स यानी पुल मीन्स होना खींचना, पुल मीन्स खींचना, तो वो दोनों क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक होकर उस डोर को जो और खींचते हैं, उससे क्या हो रहा है, सिर्फ उसके बैंग हो रहे हैं, यानी हिट करने की आवाज़ आ रही है और उससे कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। रॉय एंड द डॉग वर नाउ अप, ये जो रॉय जो रूम में सो रहा था और उसी के सामने जो हॉल था वहाँ पे डॉग सो रहा था जिसका नाम रेक्स है। द वन शाउटिंग क्वेश्चंस, यानी रॉय क्वेश्चन पूछ रहा है और जो डॉग है वो बहुत बहुत ज़ोर से भौंक रहा है। Father, farthest away and soundest sleeper of all, had by this time been awakened by the battering on the attic door. He decided that the house was on fire. I am coming, he wailed in a slow, sleepy voice. It took him many minutes to regain full consciousness, my mother still believing. He was caught under the bed, detected in his I'm coming, the mournful, resigned note of one breathing his last. He is dying, she shouted. फादर, जो कि अभी बहुत दूर है, साउंड स्लीपर है, जिनकी नींद गहरी है, एंड बाय दिस टाइम, अब इस टाइम पे बिन अवेकन्ड, अब वो बैटरिंग मीन्स हिटिंग, यानी जब वो जो एटिक डोर है उसको ये लोग बार बार हिट कर रहे हैं, उसकी मारने की वजह से अब वो क्या है,
फादर उठ गए हैं। ही डिसाइडेड दैट द हाउस वॉज ऑन फायर। फादर को ऐसा लगा कि घर में आग लग गई है, तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। ही वेल्ड, वेल्ड मीन्स क्राई लाउडली, बहुत ज़ोर से चीखना चिल्लाना। वो क्राई, ही वेल्ड इन अ स्लो स्लीपी, यानी वो चिल्ला तो रहे हैं लेकिन धीरे धीरे चिल्ला रहे हैं, और वो ऐसे चिल्ला नींद में ही चिल्ला रहे हैं। स्लीपी वॉइस यानी अभी भी पूरी तरीके से वो नींद से जगे नहीं है। इट टुक हिम मैनी मिनट्स टू रीगेन फुल कॉन्शियसनेस, यानी वो पूरी तरीके से नींद से बेदार होते उनको कभी भी कई मिनट लगे। My mother, still believing he was caught under the bed, detected in his, मेरी मदर को ऐसा लगा कि वो बेड में कहीं फंस गए हैं। आई एम कमिंग, द mournful resigned note of the breathing his last, he is dying, शी शाउटेड। अब जब उनको देर लग रहा है फादर को डोर ओपन करने में, तो मेरी मदर को, यानी मदर को राइटर कह रहे हैं, उनकी मदर को ऐसा लग रहा है क्या वो फंस गए हैं और वो कहीं ऐसा ना हो उनकी डेथ हो जाए। I'm all right, Briggs yelled to reassure her. I'm all right. He is still believing that it was his own closeness to death that was worrying mother. तो ये जो ब्रिक्स है उनको इत्मीनान दिलाने के लिए क्या कहता है कि अरे मैं ठीक हूँ, स्टिल बिलीव दैट इट वाज हिज ओन क्लोजनेस, वो अभी भी ये बिलीव करती है कि नहीं वो डेथ के पास है। आई फाउंड एट लास्ट the light switch in my room, unlocked the door and Briggs and I joined the others at the attic door. The dog, who never did like Briggs, jumped for me. कि मैंने आखिरकार मुझे जो स्विच था वो मिल गया। उसके बाद क्या किया मैंने, द लाइट स्विच मिल गया मुझे। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, अनलॉक द डोर, डोर को ओपन किया, एंड ब्रिक्स एंड आई जम्प द अदर्स एट द एटिक डोर। जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि मैं और मेरे साथ ब्रिक, हम दोनों ने एटिक डोर को पूरी ताकत से खोलने की कोशिश की। द डॉग हु नेवर डिड लाइक ब्रिक्स, जो कुत्ता है जिसने कभी ब्रिक जैसा काम नहीं किया, जम्प फॉर हिम, उसके पास कूदा, यानी उसके लिए वो जोर से कूदा। Jumped for him, assuming that he was the culprit in whatever was going on, and he was the culprit in whatever was going on, and Roy had to throw Rex and hold him. We could hear father crawling out of bed upstairs. Roy pulled the attic door open with a mighty jerk, and father came down the stairs sleepy and irritable, but safe and sound. My mother began to weep when she saw him. Rex began to howl. उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो डॉग को ऐसा लगा क्या वही जो कुछ भी हो रहा है इसका रियल मुजरिम कौन है, ये ब्रिक्स बील है। कल्प्रिट मीन्स होता है मुजरिम, अ गिल्टी पर्सन, और जो कुछ भी हो रहा है उसका उसके लिए जो कल्प्रिट है वो ब्रिक्स बील ही है। रॉय हैड टू थ्रो रैक्स, रॉय ने क्या करा, कुत्ते को वहाँ से हटाया, एंड होल्ड हिम, और उसको पकड़ लिया। वी कुड हियर फादर क्रॉलिंग आउट ऑफ बेड अपस्टेयर्स, हमने सुना कि जो फादर हैं वो ऊपर बेड से नीचे की तरफ आ रहे हैं। रॉय पुल्ड द एटिक डोर ओपन, रॉय ने दरवाज़ा ओपन किया, पुल किया। विद अ माइटी जग मीन्स बहुत ज़्यादा ताकत से, झटके से दरवाजे को ओपन किया। एंड फादर केम डाउन द स्टेयर्स, और फादर नीचे स्टेयर्स से होते हुए नीचे आए, और वो अभी भी नींद में है और थोड़ा इरिटेबल है, बट सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड इज़ अ फ्रेज विच मीन्स सही सलामत। वो नींद में है और थोड़े इरिटेड हैं लेकिन सही सलामत है। मेरी माँ उनको देख के, माई मदर बिगैन टू वीप, मदर उनको देख के क्या करने लगती है, रोने लगती है। और रेक्स जो है, जो डॉग है, वो ज़ोर ज़ोर से भूखने लगता है। वॉट ऑन अर्थ इज गोइंग ऑन हियर, आस्क्ड फादर। फादर पूछ रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है। द सिचुएशन वॉज फाइनली पुट टुगेदर लाइक अ जैगेंटिक जिगसॉ पजल।
Father caught a cold from crawling around in his bare feet, but there were no other bad results. I'm glad, said mother, who always looked on the bright side of things, that your grandfather wasn't here. तो अब उसके बाद क्या कहना है, सिचुएशन वॉज फाइनली पुट टुगेदर, यानी जो हालात था, सिचुएशन था, वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो गया. लाइक अ जैगेंटिक, जैगेंटिक मीन्स होता है ह्यूज. जिगसॉ पजल होता है कि जब किसी पिक्चर का अलग अलग पार्ट्स कर देते हैं, फिर उसे वापस एक तरह का पजल होता है कि अलग अलग कर देते हैं, फिर उसे रीअरेंज करते हैं. इस तरीके का पजल जो होता है उसे क्या बोलते हैं, जिगसॉ पजल. तो सारी चीज़ें पहले तितर बितर थी, फिर वापस से ऐसा क्या हो गया था, जैगेंटिक जिक्सॉ पजल. पजल जिस तरीके से हम किसी सिचुएशन को नॉर्मल करते हैं, वैसे ही इट हैज़ बीन यूज्ड हेयर टू शो द ह्यूमर रिलेटेड टू द सिचुएशन. सिचुएशन से रिलेटेड जो भी हालात हैं, उसके लिए यहाँ पे यूज़ हुआ है जैगेंटिक पजल. तो इसमें तो सिचुएशन पहले पहले जैसा नॉर्मल था वैसा नॉर्मल हो गया. फादर कॉट अ कोल्ड, लेकिन फादर को क्या हो गया था, थोड़ी सर्दी हो गई थी. क्यों? क्योंकि वो थोड़े नंगे पैर चल लिए थे इधर से उधर, इसलिए. देयर वर नो अदर बैड रिजल्ट, लेकिन और कोई दूसरा नुकसान नहीं हुआ था. आई एम ग्लेड, सेड मदर. उनकी जो माँ है वो हमेशा पॉजिटिव सोचती हैं. हु इज़ पैसिमिस्टिक, हु इज़ ऑप्टिमिस्टिक, जो हमेशा पॉजिटिव साइड सोचती हैं किसी चीज़ के. तो वो कहती हैं कि चलो अच्छा हुआ, मैं खुश हूँ कि तुम्हारे ग्रैंडफादर यहाँ नहीं थे. इन दिस वे द स्टोरी एंड्स. In next class we'll do the exercises of this chapter.